never drop against all odds. I'll pop, 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 pop. Ha. You can never knock me. You can never. वेलकम नेहल, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन जशन टॉक्स एंड मैंने आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी. आई हैव लॉस्ट 47 kgs, राइट? सो Yeah, right. दैट ट्रांसफॉर्मेशन ब्लू माय माइंड एंड आई वाज लाइक यार नेहल की स्टोरी लोगों को जरूर सुनने की जरूरत है, बिकॉज आई नो मैंने अपना सिर्फ 13 kgs फैट लॉस किया है. The dedication it takes, the consistency it takes, the mindset, strength or courage it takes. It takes a whole lot of things. So Right. I want to understand your journey. And first of all, welcome. Thank you very much for doing this for all of us. And I'm very, very excited for this. So my journey started in 2019. Mhm. So मतलब मैं ये reason नहीं कहूँगी कि सिर्फ it was for health. It was because I was facing a lot of body shaming, a lot of pain. My parents were not happy with the way I was. So Mhm. that was also the reason I will tell that was a main reason of my transformation. So yeah, when I started my transformation, I was living in Mumbai and I was a student. I was doing my MBA. So at that time, I did not get that much time to manage gym, diet, everything. So yeah, I just did the gym at midnight also some days, and diet भी काफी बार नहीं हो पाती थी, obviously if you are a student. So I anyhow managed it, and मतलब in Mumbai while being a student, I lost 20 kgs, and then फिर lockdown हो गया था जो भी है. And lockdown was also the main. मतलब lockdown में तो I have made a hell lot of mistakes. मतलब I gone psycho. Okay. So I was working out in morning also. I was working out in evening also. Then I was eating very low. मतलब and क्योंकि lockdown है तो depression कई लोगों को हो रहा था उस time. So I was also in that phase only. So मतलब that was also actually a very good time if I think about it right now. Like that was a very time when I would change. मतलब अभी तो ठीक है, अभी तो है, but that moment was actually the best, I can say. Yeah, so that was the main thing. And जैसे अब मैंने start किया है, ठीक है, and my family has also transformed with myself. My mother has lost 20 kgs, my father has lost 10 kgs, and even my sister is अरे going. वाह. मतलब मैं उसे, वो बहुत आलसी है, बट मैं उसे बहुत पुश करती हूँ. मैंने कहा तू उठ, तू कर. एंड कई बार मुझे पानी डालना पड़ता है उसके ऊपर टू जस्ट वेक हर अप एंड गेट हर टू वर्क आउट. तो या शी हैज आल्सो लॉस्ट 5 kg. सो या दिस वाज द ट्रांसफॉर्मेशन with me. My family also supported me in all this, and they also transformed themselves from this. And it feels so amazing कि यार हमसे इंस्पायर होके स्पेशली आवर लव्ड वंस आर टेकिंग एक्शन, बिकॉज Yeah, एंड exactly. आई थिंक इट्स ह्यूज. नेहल, ये छोटी बात नहीं है, बिकॉज you can force people to change, but when you inspire them to change, it's another level. Because Yeah, that's all. like people come up to say कि how did you do this, we want to do this, and I think that's huge. वो बहुत बड़ी बात है. Also I feel कि जब हमारे आसपास वाले लोग ये चीज करते हैं, हमारे loved ones understand, and एक अच्छी हेल्थ होना पूरी फैमिली में, आई थिंक इट्स ह्यूज. बिकॉज क्यों Yeah. क्यों होता है, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपकी फैमिली में एक इंसान भी बीमार है ना, सारी फैमिली बीमार है. Right, क्योंकि right. हॉस्पिटल के चक्कर सबके लग रहे हैं, डॉक्टर के पास चक्कर, केमिस्ट के पास. उसके बाद तुमको right. कोई भी छोटी सी चीज है, तुम ज्यादा सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते कि लगेगा कि यार ये Yeah. बीमार पड़ा है, ये इतना क्यों नाच रहे हैं, ठीक है. Right, तो right. कभी कभी अपनी खुशियों को भी दबाना पड़ता है कि नहीं यार, घर पे एक इंसान बीमार है. तो एंड एक्चुअली छोटी छोटी चीजें होती है. मतलब जैसे हाँ. अब घर में मिठाई आ रही है तो दे नो दैट आई विल नॉट ईट इट. तो उनको लगता है अब मैं नहीं खा रही हूँ, ठीक है, तो वो कैसे खा सकते हैं. तो मतलब ये भी हाँ. काफी चीजें हैं जो मतलब इन फैमिली में होती है कि नहीं वो सैलेड खा रही है, हम छोले भटूरे कैसे खा सकते हैं. तो या मतलब इन चीजों से, जैसे मैं सैलेड खाती हूँ तो अब दे आर ऑल्सो लाइक अब हम भी वही खाएंगे खाएंगे. तुम बनाओ. वो बहुत अच्छी चीज है, पता है क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैंने वेट लॉस किया अपने फादर से इंस्पायर होकर, बट मैं बहुत ज्यादा एक्टिव था एंड आई डिसाइडेड कि मैं शुगर इनटेक नहीं करूंगा. हाँ. ठीक है. और मैंने रिफाइंड शुगर को कट डाउन किया. जब मैं नहीं खाता था, ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स को भी देख के फील होता था कि यार ये नहीं. उन्होंने पता है क्यों छोड़ा? उन्होंने स्टार्टिंग में इसलिए छोड़ा, उनको अपनी हेल्थ का नहीं था, उनको था यार अगर हम खाएंगे जश्न के लिए मुश्किल होगा. तो for that sake of support they also left it. And obviously they also feel amazing, उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हुई इसके बाद. एंड वो अब इंटेंशनली और विलिंगनेस भी अब नहीं खाते हैं, विलिंगली नहीं खाते हैं.
which is very good. Yeah, एंड आई right. आई आई कैन अंडरस्टैंड वो एक दूसरे को सपोर्ट करना, फैमिली सपोर्ट इतना ज्यादा मैटर करता है. एंड आई ऑल्सो वांट टू आस्क यू कि व्हेन यू स्टार्टेड विद योर जर्नी, एंड आई नो देयर वाज अ लॉट ऑफ बॉडी शेमिंग, आई कैन अंडरस्टैंड, कंटिन्यूअस Mm-hmm. बॉडी शेमिंग होती थी. एंड उस ड्यूरेशन में जब बॉडी शेमिंग हो रही थी, तब यूजुअली पर्सन हैज टू ऑप्शंस. वन विच यू डिड, यू, ठीक है, तुमने बॉडी शेमिंग को बहुत पॉजिटिव वे में यूज किया Positively, है, yeah. क्रिटिसिज्म को, ठीक है, बिकॉज वी ऑल गो थ्रू क्रिटिसिज्म, स्पेशली व्हेन वी पुट आवरसेल्व्स ऑन टू सोशल मीडिया एज अ कंटेंट क्रिएटर्स. तो क्रिटिसिज्म, Right, एक right. कंटिन्यूअस क्रिटिसिज्म की हम लोगों को तो आदत है. नंबर टू Mm-hmm. इज कि दूसरा ऑप्शन यू हैड वाज कि तुम ऐसे इंसान बन जाओ जो लोगों को उल्टा उसको सुनना ही बैश करे. नहीं. हाँ, उल्टा बैश करे कि तुम कौन होते Right, हो, right. मैं अपना खाती हूँ, तेरे बाप का खाती हूँ, मतलब होता है ना. और उसके बाद बैश करना एज इन लाइक इट बिकम्स अ माइंडसेट के वर्ल्ड वर्सेस मी, कि या तो तुम मेरी साइड हो या तो मेरे अगेंस्ट हो, बीच में कुछ नहीं. जो मैं मानता हूँ कि Right. बहुत ज्यादा, आई विल से वेरी टॉक्सिक माइंडसेट, इट इज अ वेरी टॉक्सिक माइंडसेट. तो Right. व्हाई डिड यू चूज कि ठीक है लेट्स इंप्रूव, या हाउ डिड इट कम टू यू फाइनली कि दिस इज डन, अभी इस पॉइंट के बाद आई कैन नॉट बी इन दिस बॉडी एनी मोर, आई नीड टू ब्रिंग अ चेंज. या तो मतलब मुझे ऑब्वियसली मैं रिसेंटली जस्ट मैं हॉलीडे से आई थी, ठीक है, एंड बहुत कुछ मुझे सुनने को मिला था घर पर आकर, ये वो. तो आई डिसाइडेड कि जैसे ही मैं मुंबई जाऊंगी आई विल जॉइन अ जिम, ठीक है. तो जैसे ही मैंने जिम ज्वाइन किया तो 10 kg तो मेरा विद इन मतलब 1.5 month मेरा हो गया खत्म, मतलब क्योंकि बहुत एक्सेस होता है ना. तो यार तो उस टाइम मुझे फील हुआ कि यार मतलब आई कैन डू इट. पहले हाँ. मुझे पता, पहले मैं 3-4 किलो कम होता फिर वापस बढ़ जाता था. पहले तो इतने साल तो यही चल रहा था, ठीक है. तो एट दैट टाइम आई फेल्ट कि नहीं यार अब कर सकते हैं, ठीक है, इट्स द राइट टाइम. तो या एट दैट टाइम फिर मैंने डाइट भी प्रॉपरली स्टार्ट किया, सब कुछ किया. स्टार्टिंग में मैंने कार्डियो ज्यादा किया था, दैट वाज माय मिस्टेक. तो या तो मतलब उसके बाद दिस स्टार्टेड एंड फिर काफी लोग मुझे बोलने भी लगे, काफी लोग कॉम्प्लीमेंट भी देने लगे, मोटिवेशन एंड ऑल कि नहीं बहुत अच्छा है वगैरह. तो या फिर दैट वेंट थ्रू द फ्लो एक्चुअली. So, So so this is how the did this, how did this social media thing came up? Because you were just transforming yourself, okay? So वो सोशल मीडिया पे सारा शेयरिंग का कंसेप्ट कहाँ से आया, कैसे किया, कि सोचा चलो मैं यार कर भी मतलब मैं खुद भी ये चीज अभी तक सोचती हूँ. मैंने कहा ये मतलब कैसे हुआ, क्या था एक्चुअली, मुझे भी समझ नहीं आया मतलब ये क्या हुआ, ठीक है. तो मतलब रैंडमली, ठीक है, लॉकडाउन था तो मैंने कहा था कि आई कैन क्रिएट अ पेज ऑफ माय ओन, ठीक है. मैंने ये कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं था, फॉलोवर्स एंड ऑल का कोई मेरा मोटिव कभी था ही नहीं. मुझे पता भी नहीं था इतना सब कुछ होता भी है, वो सब मैं सीखा है यहाँ पर आकर, ठीक है. तो आई क्रिएटेड माई पेज. तो उसके बाद मैं जो रैंडम नॉर्मल से मतलब जो इंटरनेट पे मिलता है वो सब पोस्ट करती थी. मैं खुद का ऐसा कुछ कंटेंट नहीं पोस्ट करती थी. जो ऑनलाइन मुझे मतलब लगता था दैट आई यूज्ड टू पोस्ट. तो उसके बाद धीरे धीरे मतलब मैं सीखने लगी. मैं काफी रील्स वगैरह देखती थी, लोग कैसे बनाते थे. सो या मतलब देखते देखते आई यूज्ड टू लर्न. एंड अब तो मुझे ट्रेनर्स मैसेज करते हैं लाइक जो 10 साल से ट्रेन करे कि हम आपकी रील्स को देख के सीखते हैं, आप कैसे बनाते हो, हमें भी थोड़ा आइडिया दो. नहीं, it's a very inspiring. I loved your content. So yeah, so this is like very inspiring. And ये जैसे you faced it, okay? So इसमें अब ये आता है कि appreciation तो है, but at the same time there's a lot of criticism also, है ना? Right. And I know you face it, I face it, है ना? We are from the same community, we understand कि किस तरह का criticism आता है. Exactly. So do you think initially it affected your mental health in a way कि you are like कि यार मैं तो ये लोगों की सेहत अच्छी करने के लिए या सिर्फ उनको इंस्पायर करने के लिए कर रही हूँ, मुझे कौन सा यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, सो मैं इनकी क्यों सुनूं, या Alright. तो वो आई थिंक इट टेक्स अ टोल ऑन मेंटल हेल्थ. तो हाउ डिड इट टेक, मतलब आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हुई, अगर हुई तो आपने उसको कैसे टैकल किया? हाँ मतलब मेरी मेंटल हेल्थ काफी, क्योंकि मतलब कहीं लोग मुझे ये बोल रहे थे कि तुम कुछ भी अलग नहीं कर रहे हो, ठीक है. मतलब दिस इज समथिंग जो कोई भी कर सकता है. जब जब मेरे फॉलोअर्स वे लाइक 3 to 4K, ठीक है, अबाउट 6 months ago. तो पीपल वर लाइक कि कुछ भी तुम डिफरेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे जैसा कोई भी स्टार्ट कर सकता है अकाउंट, ठीक है. तो जैसे जैसे मतलब मैं सीख रही थी, मैंने इन इन दिस होल प्रोसेस आई हैव लर्नड अ लॉट कि कैसे कंटेंट बनाना है. एंड अब तो मतलब लिटरली मेरे खुद के दिमाग में चलता ही रहता है. मैं ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म नहीं करती. मेरे दिमाग में कहीं पर अपने आप ही आइडिया आता है एंड आई राइट डाउन ऑल द आइडियाज व्हिच आई गेट, ठीक है.
तो मुझे कई लोगों ने बोला कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग समथिंग डिफरेंट, कि वर्कआउट तो कोई भी बना सकता है, ठीक है, रेसिपी तो कोई भी बना सकता है, एवरीथिंग लाइक दैट। तो आई वाज लाइक ओके ओके, आई विल डू इट सम डिफरेंटली। तो मैं अब रेसिपीज में जो मैं बनाती हूँ वो कई बार इंटरनेट पे आपको नहीं दिखेगी, मैं खुद की मतलब एक्सपेरिमेंट से बनाती हूँ। पहले मैं नेट पे देखती हूँ, मैं उस 3-4 चीजें मिक्स करती हूँ, फिर मैं खुद बनाती हूँ, देन मैं वापस रीमेक करती हूँ, अगर वो अच्छी बनती है, अगर नहीं बनती है तो फिर हटाती हूँ। तो इससे आई डिड समथिंग डिफरेंट विद देम आल्सो, कि नहीं मतलब लोग तो बहुत कुछ बोलते कि वर्कआउट का ये सही नहीं है, मेरी प्लांक पोजीशन सही नहीं थी एक वीडियो में, एंड आई टोटली एक्सेप्टेड इट। मैंने उसमें कैप्शन पे भी लिख दिया कि हाँ, आई नो दैट इट इज नॉट राइट, still trainers are commenting, tagging influencers who have 600K followers कि देखो ये क्या हो रहा है ना? हाँ राइट, ये मैंने मेरे उसमें साथ लिख भी होता भी है। दिया था। हाँ, मैंने उस समय लिख भी दिया था। एक्चुअली क्या होता है, वीडियो पोस्ट करने के बाद मैंने उसको प्रॉपर्ली देखा, तो मैंने सोचा कि हाँ ये गलत है, बट मुझे लगा कि हटाती हूँ, आई विल राइट इट कि दिस इज माय मिस्टेक। फिर भी पीपल वर टैगिंग अदर इन्फ्लुएंसर्स कि इनका कंटेंट देखो, ये क्या पोस्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, बट देन आई थॉट कि जस्ट इग्नोर दैट्स ऑल। एंड आई थिंक ये पता है क्या है, ये बहुत बुरी बात है, बिकॉज हम यहाँ पे, आई ऑल्सो फील, यू ऑल्सो, तान्या ऑल्सो, अंकिता ऑल्सो, मैं भी, वी आर जस्ट ट्राइंग टू डॉक्यूमेंट आवर नॉलेज। या राइट, सो वी आर ऑल्सो इन द जर्नी। हम यहाँ, हमने निर्वाणा नहीं ले लिया है कि हम परफेक्ट हम सिखा रहे हैं, हम अपनी जर्नी को बस डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। ओके, एंड इफ यू लाइक इट, फॉलो अस, इफ यू डोंट लाइक इट, यू कैन जस्ट अनफॉलो अस, है ना? तो उसमें कोई, वो इंस्टाग्राम ने इतना अच्छा फीचर दिया है, यू डोंट हैव टू बैश पीपल अराउंड। एंड अभी मैं भी बहुत बार वर्कआउट करता हूँ, देयर आर मेनी काइंड ऑफ वर्कआउट जिसमें मेरी भी अभी मसल मेमोरी नहीं बनी है। ओके, एंड आई हैव बीन वर्किंग आउट फ्रॉम लास्ट 3-4 years, मेरी भी अभी मसल मेमोरी कुछ वर्कआउट्स में वीक है, एंड इट विल टेक टाइम, बट आई एम हियर डॉक्यूमेंटिंग माय ऑल ऑफ द जर्नी। इफ यू लाइक इट, इट्स ओके, व्हाई डू यू हैव टू बैश इट, है ना? तो मतलब अगर तुम अपलिफ्ट नहीं कर सकते, कम से कम नीचे तो मत खींचो। तो वो बिल्कुल होता है। एंड आई थिंक एक स्टेज अभी ये आ चुका है कि वी आर ओके विद इट। आई थिंक ठीक है, कर लो। हाँ, आई एम कंप्लीटली ओके। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इफेक्ट करता था, ठीक है, स्टार्टिंग में लोगों को जवाब भी देते थे, अभी भी टेम्पटेशन होती है, कभी कभी बहुत सही जवाब होता है दिमाग में, किसको दे देते हैं, बट अभी वो टेम्पटेशन फाइट करते हैं। आई थिंक मैं तो बहुत ज्यादा आज भी पोस्टेड अ वीडियो जिसमें मैंने मेरी फ्रेंड को बैठा कर मैंने वो लेग प्रेस किया था, ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा मन करता है, मैं कुछ डिफरेंट करती हूँ हर बार, तो सेम या तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा डिफरेंट करती हूँ, तो पीपल आर लाइक आपकी जिम में वेट की कमी है क्या? अरे दैट वाज टोटली फन। मुझे मेरा मन करता मैंने करती हूँ, एंड शी वाज लाइक हमने वी हैव डन दिस सो मच, हम वी हैव डन दिस शिट आल्सो, लाइक हां एग्जैक्टली। हमने 2 हफ्ते पहले वो मैंने और मेरे फ्रेंड ने हमने जैसे डेडलिफ्ट लगाई थी दोनों ने साथ में, मतलब वी डू दिस विद दिस फन स्टफ, है ना? तो वी हैंग अराउंड द जिम फॉर 2-3 आवर्स, वी आर सपोज्ड टू हैव फन। अगर वहीं पे सीरियस होकर बैठे रहेंगे तो क्या मजा। सो आल्सो नेहल, आई वांट टू आस्क यू कि कभी कभी कि क्या सिचुएशन आती है कि हमने ना बहुत ज्यादा कुछ चीजों को स्ट्रगल किया, एंड स्ट्रगल्स, मुझे पता है आपको स्ट्रगल्स बहुत लोग पूछते होंगे, बट ऐसा कौन सा स्ट्रगल है जो लगा कि यूजलेस स्ट्रगल था, कि यार इसको, यार मैं इतनी देर से इसकी टेंशन ले रही थी, इसका तो सोल्यूशन बहुत सिंपल है, या ये मैंने इतनी देर क्यों किया, ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती की, ये तो बिल्कुल यूजलेस चीज मैंने की। सो व्हाट वाज योर यूजलेस स्ट्रगल? पहले ये जो मिथ था कि 7 बजे के बाद नहीं खाना है, ठीक है, तो आई यूज्ड टू ईट लास्ट मील एट 5, ठीक है, जो लॉकडाउन में, और फिर मैं वो मतलब मैं इतना लेथार्जिक फील करती थी, ठीक है, यार मतलब आफ्टर दैट की आई यूज्ड टू स्लीप एट 12 o'clock इन लॉकडाउन आराम से, तो मैं 5 o'clock मिल रही थी एंड 12-12 बजे में सोती थी, आई यूज्ड टू फील इतना लेथार्जिक, ठीक है। फिर मतलब मुझे पता चला कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, दैट वाज द वन। और भी मैंने कई ब्लैक कॉफी में इतना पीती थी, मैं इतना ग्रीन टी पीती थी, दैट वाज अ वेस्ट। अब मैं बिल्कुल भी नहीं पीती, मैं पीती हूँ मतलब एज अ प्री वर्कआउट, नॉट फॉर बर्निंग फैट, वो वाले कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी नहीं। तो ये दो चीजें थी जो मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है। हाँ बिल्कुल, मतलब ग्रीन टी को तो बहुत लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है, लोग भटूरे खाते हैं उसके बाद पिएंगे ग्रीन टी, ठीक है, वो गिल्टी कम करने के लिए। आई थिंक वो ज्यादातर गिल्टी कवरेज के लिए यूज होती है। एंड हाँ, मतलब पता है क्या है, लोग एडवाइजेस देते हैं सोशल मीडिया पे, दे डू नॉट ईट आफ्टर 7 PM, बट दे आर गिविंग एडवाइस अकॉर्डिंग टू देयर लाइफस्टाइल। दे माइट बी स्लीपिंग अराउंड 9, उनके लिए ठीक है वो 7 बजे के बाद ना खाएं,
है ना। हाँ, और राइट अगर एक राइट। इंसान 12 बजे तक 1 बजे तक जाग रहा है, वो अभी मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, ठीक है, और हाँ मैं रात को हाँ भी टाइम से सो जाता हूँ। मेरे हाँ लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज मैं ज्यादा देर जाग रहा हूँ। एक इंसान है जो सोता हाँ, ही दिन मेरे में लिए नौ भी दस बहुत घंटे मुश्किल है, होता है। उसके लिए हाँ। 16 आवर विंडो में खाना बहुत ईजी है। आर यू गेटिंग? राइट। मैं सो रहा हूँ सिर्फ 6-7 घंटे, मैं ज्यादा देर जाग रहा हूँ, मेरे लिए सिर्फ 16 घंटे, मेरे मेरे लिए सिर्फ वो 16 घंटे में खाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, या चौदह हाँ, घंटे में मेरे लिए खाना भी मुश्किल हो जाता है। सेम सेम, मेरे लिए भी तो बहुत मुश्किल हाँ, होता है। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप सोशल मीडिया पे जो भी एडवाइस मिल रही है, हाँ every हाँ। advice doesn't work for everyone. You या have राइट। to be intelligent enough to figure out what works for me. हम्म। वरना तुमने अगर इतनी ही सेल्फ अवेयरनेस नहीं है अपनी बॉडी को लेकर, ठीक है, सो उसमें यू कैन डू वन और टू थिंग्स, आइदर यू कैन गेट सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आप टाइम लगाओ अपनी बॉडी को समझो। दूसरा, यू कैन गेट अ हेल्प फ्रॉम कोच, ठीक है, किसी कोच या के राइट। साथ आप मिलके समझने में हेल्प कर सकते हैं अपनी बॉडी को, राइट। सो राइट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी जैसे आप कर रहे हो, ठीक है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, एंड यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ रिकग्निशन आल्सो फॉर दैट, एंड एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी वेल। एंड समटाइम्स, हाँ बिल्कुल, आई एम श्योर कि कभी कभी डिमोटिवेटेड भी फील होता होगा, है ना। बहुत बार। और बहुत हाँ, बार। और आई थिंक इट्स आल्सो नॉर्मल, मुझे भी बहुत बार होता है, एंड वी नेवर टेल टेल दिस अबाउट टू पीपल, है ना, कि हमें पहली चीज तो ये होती है कि यार मेरे को देख के तो मोटिवेट हो रहे हैं, इनको क्या बताएं, है ना, कि ये। हाँ। हाँ। और दूसरा, तो हाउ डू यू अपलिफ्ट योरसेल्फ इन दैट मोड उस टाइम पे। Actually, the main problem is कि बीच में I was not able to manage this page and my business equally. हाँ थोड़ा मेरा ध्यान इस पे ज्यादा हो रहा था, and हाँ because of that my business was affecting. And मतलब पता नहीं, मतलब देखो एक चीज तो है जो I will accept it, मतलब I have accepted with my father also कि मुझे इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो I accepted that thing and I told my father also and he knows it, ठीक है। तो ही वॉज लाइक कि मतलब इसमें इतना मतलब क्यों है कि हमको कुछ नहीं बोलना पड़ता, कुछ तुम अपना मन से तुम्हारा आता है, कुछ चीजें इसमें भी आनी चाहिए। तो मैंने बोला कि हाँ आई विल डू इट, बट पता नहीं मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो दैट वाज द मतलब दैट डीमोटिवेट्स मी अ लॉट, ठीक है, बट मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, बिकॉज इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है और उसमें कोई भी मतलब आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हाँ मुझे है इस चीज में। एंड वाइल मेकिंग कंटेंट, ठीक है, मतलब जैसे मैं ऑफिस से काम करूँ तो आई गेट टायर्ड वेरी इजीली, एंड कंटेंट मैं दिन के 12 घंटे भी बना लूँ तो भी मैं थकती नहीं हूँ, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो या मतलब मैंने ये चीज एक्सेप्ट कर लिया, एंड दिस इज द थिंग विच मतलब अभी ये एक्चुअली स्ट्रगल चल रहा है कि हाउ आई शुड डू एवरीथिंग, सो दिस इज द मेन, बट अब इसको आई एम इसको मैं ट्राइंग टू बताता हूँ, फिगर इट आउट। हाउ डू आई टैकल विद दिस। ओके, हाँ। सो आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई ओन अ जिम, अभी मैं जिम भी मैनेज कर रहा हूँ। या आई नो Okay, या। so I have my offline clients, online clients. Okay, so हम clients को सबको manage कर रहे हैं। I'm also managing this content creation. I also love this. मतलब मैंने अभी this is we are shooting this 4th podcast. ठीक है, none of these has gone online, but I'm loving this. I'm loving these conversations. ठीक है, या conversation में बहुत अच्छा एग्जैक्टली। लग रहा है। एंड मैं नॉर्मली किसी के साथ इतनी देर बैठ के बात नहीं कर सकता, बट यहाँ पे आई एम लविंग इट। सो हाउ डू आई हैंडल दिस? ओके, सो नंबर वन थिंग इज, इसमें दोनों की तुम समझो कि दोनों में से पर्क्स क्या आ रहे हैं। पर्क्स मतलब बिजनेस में से क्या पर्क्स है, इसमें क्या पर्क्स है। इसमें पर्क्स हो सकते हैं कि तुम्हें रिकग्निशन मिल रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, यू लव डूइंग इट, तुम्हें टाइम का नहीं पता लगता। उसमें क्या पर्क्स है, उसमें से एक इनकम हो रही है, जो वो वाली इनकम कहीं ना कहीं पे आप कंटेंट क्रिएशन में भी यूज कर रहे होगे, या राइट। राइट। सो वो उस चीज के लिए जरूरी है। सो वंस यू हैव दिस क्लियर माइंडसेट कि उसके क्या पर्क्स हैं, इसके क्या पर्क्स हैं, यू सीरियसली डू दिस, और धीरे 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 यू कैन शिफ्ट इट टू कंटेंट क्रिएशन वंस यू आर मेकिंग इनफ मनी फ्रॉम कंटेंट आल्सो, यू कैन डू या दिस फुल राइट। टाइम। मेरा भी यही गोल है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट टू रन जिम। मेरा जो अभी माइंडसेट है, अगर मुझे कोई बोलेगा ना एक और जगह हमारे पास बढ़िया वहां पे जिम खोलो, मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो बहुत मेरे से नहीं होगा, ठीक है, हाँ हाँ बिकॉज राइट। आई डोंट लाइक टू मैनेज ऑल ऑफ द स्टाफ एंड एवरीथिंग। मेरे को इतना नहीं लगता, मेरे को लगता है कि यार मैं इस पे ज्यादा वैल्यू दे सकता हूँ, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। हाँ बट आई राइट राइट। ऑल्सो नो कि अभी उससे मेरी बहुत ज्यादा मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी है, आई कैन नॉट डिनाई। सो आई ट्राई टू मैनेज वो दोनों चीजें अपने अपने टाइम के साथ, उसमें टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प होती है।
सो वो हो जाएगा. इट्स द थॉट प्रोसेस की थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी होगी, वो हो जाएगा. एंड Nihal, I also want to ask you कि DMs में I know you must be getting this question a lot कि like you are helping some people, right? तो आप फिटनेस गोल अचीव करने में लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं. So people must be asking your certification. हाँ, right. So actually, right now I've applied and I'm working on that only. तो अभी मतलब I'm नहीं, not but giving it. honestly क्या जरूरत है? I don't think so, क्योंकि जितने ट्रेनर्स है, ठीक है, लिटरली पीपल विथ पर्सनल ट्रेनर मैसेज मी कि ये डाइट आप मुझे बताओ ये सही है या नहीं, ठीक है. एंड जो ट्रेनर है वो भी मुझसे कहीं क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, जो पर्सनल ट्रेनर है, एंड विथ सर्टिफिकेशन, 3-4 सर्टिफिकेशन है उनके पास, ठीक है. फिर भी दे आस्क मी, क्योंकि दे आर लाइक कि तुमने सब कुछ फेस किया, यू हैव एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग, सो यू नो इट बेटर, ठीक है. उनका सिर्फ सर्टिफिकेशन, उनका कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है. तो दे यूज टू आस्क मी. तो अब मुझे लगता है कि मैं सर्टिफिकेशन ले लूं, ठीक है. और एक्चुअली जोधपुर में भी कहीं डाइटिशियन जो दे आर सर्टिफाइड, मतलब वेरी ग्रेट, दे आर वेरी गुड. तो दे टेल मी कि प्लीज गिव सम टिप्स कि हमको भी थोड़ा सा कुछ पूछना है लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, एंड एवरीथिंग. So I was like कि अभी I will just go for certification. I will also take it, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फिर people criticize a lot कि नहीं certification ये वो. But there are many people who tell me कि आपको जरूरत ही नहीं है लेने की, अगर आप ऐसे भी दोगे तो we will agree. Exactly. And मैं पता यही बोलता हूँ, मेरे पास एक्चुअल में सर्टिफिकेशन है, but trust me, it is useless. To be really honest, me and Tanya both talked about this. It is complete bullshit. Because right. certification में तुम्हें जो knowledge मिलेगी ना, once you start getting the certification, you'll understand कि यार मेरे को तो ये सारा कुछ पता है. They just teach you with the basics, and I think what certification does is, certification तुम्हें एक little bit of degree हो, certification हो, I'm also graduated, I think it gives ego. That's it. बिकॉज सर्टिफिकेशन से क्या होता है कि लोगों को लगता है कि नहीं तेरे को क्या पता मेरे पास सर्टिफिकेशन है. वो पॉइंट बहुत बार आता है ना. और उसके बाद जब मुझे अगर पूछे व्हाट इज योर सर्टिफिकेशन, आई टेल देम कि सी लुक एट माय पेज, इफ यू फाइंड आई हैव नॉलेज, ट्रस्ट मी, गेट स्टार्टेड विद मी, अदरवाइज डोंट आस्क माय सर्टिफिकेशन. आई डोंट इवन टेल पीपल. ठीक है, तो मेरी नॉलेज पे मुझे जज करो, मेरी सर्टिफिकेशन पे मत करना. या दूसरी चीज मैं ये मानता हूँ कि जैसे सर्टिफिकेशन लोगों के पास आ जाती है ना, इट एक्चुअली लिमिट्स यू आप, बिकॉज इट्स बिल्ट ईगो में. आप अभी अब आपको कैसे एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है. लाइक आपने भी देखा होगा कि लोग लाइक यू आर आल्सो एमबीए, राइट? हाँ यार, एमबीए. सो यू आर एमबीए. सो बहुत से आपके बैचमेट्स ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छी जॉब्स मिल रही होंगी, बट उन्होंने ली नहीं बिकॉज दे वर लाइक कि हम तो एमबीए, मैं ये थोड़ी करूंगा. है ना, बहुत बार होता है. और मतलब वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं क्योंकि वो बेस से स्टार्ट नहीं करना चाहते. और यही प्रॉब्लम सर्टिफिकेशन के साथ आती है. सर्टिफिकेशन के साथ लोग बेसिक्स पे काम नहीं करते, अपनी क्लाइंट रिलेशनशिप को बिल्ड नहीं करते, एंड दे हैव दिस ईगो कि हमने सर्टिफिकेशन किया. एंड यू नो व्हाट, आई हैव फाउंड दिस, मोस्ट ऑफ द सर्टिफिकेशंस आर वेरी बायस्ड. बिकॉज बायस्ड एज इन वो एक तरह के लाइफस्टाइल को प्रमोट करेंगे. क्योंकि आई नो सम इंस्टीट्यूशंस, आई विल नॉट टेक देयर नेम, दे प्रमोट कीटो वेरी मच. I know some institutions who promote plant-based diet very much. I know some of the institutions जो मतलब वो कुछ भी प्रमोट नहीं करते, वो बोलते हैं कि सब कुछ खाओ. ठीक है, वो हर चीज अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सबके लिए वर्क करे. ठीक है, और वो तुम्हारी इतनी बायस्ड थिंकिंग बना देगा that they will start telling you that every other person is wrong. और याद है, I shared a video with you on social media कि तुम जो भी ढूंढना चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा. है ना, तो ये है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है. एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव मोर इन सेल्फ एजुकेशन देन फॉर्मल एजुकेशन. एंड देयर आर सम इन्फ्लुएंसर्स इनके पास हर एक चीज का आंसर. अब जैसे वो एक उसका ड्रिंक था जो शायद मैंने टैग किया था तुम लोगों को, फैट लॉस ड्रिंक, राइट? तो मैंने उस पे कमेंट किया, ठीक है, कि दिस इज टोटली, दिस डजंट मेक एनी सेंस. तो मुझे क्या लिखता है वापस कमेंट में कि दिस इज प्रूवन बाय साइंस कि दैट ड्रिंक्स प्रमोट्स फैट लॉस, कि आई कैन सेंड यू द पिक्चर एंड एवरीथिंग. तो मतलब उनके पास हर एक चीज का जवाब है अपने एक्सप्लेनेशन का कि नहीं हम तो सही ही कर रहे हैं. बिल्कुल, क्योंकि देखो वो चीजें आई थिंक सोशल मीडिया पे लोग इसलिए करते हैं टू गेट अटेंशन, दैट्स इट. इसमें और कुछ नहीं है. हाँ, टू गेट व्यू, वो ये टेंशन की व्यूज शेयर्स मिल जाएं लोग से, बिकॉज पीपल आल्सो वांट हैक्स, दे आल्सो टेल हैक्स. तो मतलब
एक इंसान गलत चीज ढूंढ रहा है, उसको गलत मिल देने वाला एक मिल गया, तो दोनों हाँ एक दूसरे को बहुत बस है खुश कर बहुत। रहे हैं, दोनों एक दूसरे को हाइप कर रहे हैं। तो इसमें आई थिंक बहुत बड़ी गलती ऑडियंस की भी है, इसमें बहुत बड़ी गलती कंटेंट क्रिएटर की भी है, बिकॉज वो गलत एक्सपेक्टेशन को फीड कर रहा है और हाँ ऑडियंस right. गलत एक्सपेक्टेशन लेके आ रही है। तो दोनों आई थिंक इट्स बोथ साइडेड। एंड मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया कि लोग ज्यादातर people care more about views, likes and comments than the value they are providing, बहुत बहुत ज्यादा। because वो हाइप कल्चर ऐसा बन गया है कि कंटेंट ऐसा है जो आप पोस्ट करोगे तो उसमें व्यूज तो आएंगे ही, आएंगे ऐसा ही आएंगे। है। हाँ तो पीपल मतलब कई लोग ऐसे जो सिर्फ सिमिलर टाइप का कंटेंट, जैसे अब एक मतलब आई विल नॉट टेक द नेम, देयर इज वन इन्फ्लुएंसर जो अब आपने चीट डे किया है तो उसके बाद कि वो मतलब रेसिपीज बनाती है जैसे ड्रिंक की, डिटॉक्स की, ठीक है, और उसका सिमिलर कंटेंट है उसके अकाउंट पे पूरा, एंड उसमें काफी काफी अच्छे व्यूज है नो डाउट। तो या ऐसे कंटेंट आप बनाओगे तो ऑब्वियसली व्यूज तो आएंगे ही उस पे। एंड जो सेंसिबल लोग बहुत कम है इन इसमें इंडिया में, ठीक है, जिनको पता है कि ये सही नहीं है, मोस्टली लोग उन्हीं के पीछे जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि जो शॉर्टकट है ऑब्वियसली सब कुछ उनके साथ ही जाना होता है। तो ऑब्वियसली दिस इज द थिंग, मतलब मैंने वो देखा था अकाउंट, सो आई अरे आई वो ही नहीं, शेयर्ड। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी मतलब खुद दे आर वेरी बफ्ड, दे आर यूजिंग ऑल ऑफ द सप्लीमेंट्स एंड दे आर आल्सो, आई मतलब बॉडी देख के पता लग जाता है यू आर अब्यूजिंग स्टेरॉइड्स आल्सो। एंड उसमें फिर वो एक रील बनाएंगे कि 10 रुपए की डाइट, तुम दूध पियो अंडे खाओ, मतलब हाँ। तो मैं सोचता हूँ कि यार व्हाई डोंट यू शो व्हाट यू डू, है ना, बी ऑनेस्ट। हाँ हम आई हैव बीन, आई नो पीपल हैव बीन इनटू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 6 years, हम बॉडी देख के बता देते हैं दैट हैव यू अब्यूज्ड स्टेरॉइड्स और नॉट। एंड वो भी अगर तुमने नहीं बताना, यू देयर इज दिस सिंपल फॉर्मूला ऑफ बॉडी वेट, बॉडी मास, वेट परसेंटेज, फैट परसेंटेज, एंड मतलब वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि एक रेंज के बाद बॉडी इज स्टेरॉइड अब्यूज्ड। Simple calculation, it's available on YouTube. So the point is, why are you lying so much? Why are you, if you even use steroids, just accept it, it's not that bad, okay? तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, so accept it। and वो नहीं करते बिकॉज उससे व्यूज नहीं आते, उससे उल्टा लोग बैश करेंगे, बिकॉज इंटरनेट पे लोग वैल्यू थोड़ी देने जा रहे हैं, वो तो वैलिडेशन मांगने जा रहे हैं कि बताओ मैं अच्छा हूँ, क्योंकि लोगों से जब तक नहीं सुनेंगे तब तक फील ही नहीं होगा कि मैं अच्छा हूँ। तो वो वैलिडेशन लोगों को चाहिए, एंड वो वैलिडेशन की वजह से ही लोगों को आज की डेट में फोमो भी बहुत हो रहा है कि अगर ट्रेंडिंग रील है मैंने नहीं बनाई तो मैं पीछे रह जाऊंगा, है ना। तो वो आई थिंक टेम्पटेशन बहुत ज्यादा चल रही है अभी। एंड आई ऑल्सो, ओके, आई ऑल्सो वांट टू आस्क कि अभी जैसे एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, ओके, एंड अभी यू नो दैट, ओके, हाउ मच वेट डू यू वांट टू लूज राइट नाउ? वेट लॉस तो अब मेरा टारगेट नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मेरा टारगेट जैसे आई हैव लिटिल बिट ऑफ लूज स्किन, जितनी भी लूज स्किन है आई वांट टू टोन ऑल ऑफ दैट। तो ऐसे अब ऐसे वैसे तो मतलब 50 केजीज होने वाला है, तो लोग मुझे बोलते हैं अब 50 केजीज हो जाएगा, 3 किलो और कम कर लो, ठीक है। बट मतलब पहले मैं ही सोची थी कि मैंने कम जल्दी कम करना है, बट मुझे पता है कि कोई मतलब नहीं है स्केल पे वेट लॉस करने का। so basically you तो want अभी to drop your fat percentage and gain your या muscle। एग्जैक्टली दैट इज द तो अभी ओनली लोग थिंग। ये नहीं बोलते यार बस कर यार अब कितना करना है? बहुत कि यू आर नॉट इवन फैट, आपको करने की जरूरत नहीं है, गायब होना है क्या, वगैरह वगैरह। हाँ, तो बहुत अभी नहीं, लोग। जब लोग बोलते हैं बस कर यार, सो हाउ डू यू टैकल इट? बिकॉज आई एम आस्किंग दिस बिकॉज मेरे को, हमको तो पता है हम कैसे टैकल करते हैं, हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हमें ऐसी बॉडी चाहिए या ऐसी हेल्थ चाहिए, चलो ठीक है। बट जो एक इंसान है जिसका 30 किलो कम होने वाला, उसने मैंने 15 किया, उसको लोगों को आगे बोलते हैं कि बस कर यार, क्या अब और कितना करेगा, वो बातों में आ जाता है, वो हाँ बोलता है कि नहीं हाँ ठीक बोल रहा है, अभी ठीक तो हूं मैं, अब इतना क्या करने का। तो हाउ डू यू टैकल विद दिस? तो मैं सिर्फ सिंपल आंसर दूँ यार, आई वांट टू लिव अ डिसिप्लिन लाइफ, जिसमें मैं प्रॉपर डाइट फॉलो करी हूँ, मैं प्रॉपरली जिम जा रही हूँ। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब, वापस मैं वही लाइफस्टाइल पे आ जाऊँ कि आई एम ईटिंग जंक, आई एम नॉट वर्किंग आउट। आई लाइक टू लिव अ डिसिप्लिन लाइफ, एंड अभी नहीं, अगर मेरा 20 किलो भी और कम हो जाएगा देन ऑल्सो आई विल फॉलो द सेम थिंग थ्रू आउट माई लाइफ, एंड आई विल ट्राई टू डू दैट। So yeah, मतलब discipline is the only thing which is making me do this. एग्जैक्टली, वेरी नाइस। एंड हाँ, मेरे को कोई बोले बस कर यार तू कितना करे, ठीक है ऐसे ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप सही बोल रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ आप भी बोलते होंगे इतने स्टेरॉइड्स अगर क्यों लेते हो ये सब। हाँ, मेरे को बोलते हैं कि यार तुम क्या, यू यूज स्टेरॉइड्स, व्हाट आर दीस सप्लीमेंट्स, व्हाट आर दिस, मतलब वो मल्टीविटामिन्स को देखेंगे व्हाट इज दिस टैबलेट, ये वो मैं बोलूंगा अच्छा तू बंद कर दे यार, कितना क्या लेगा, मैंने ठीक है कर दूं, मैं सोच रहा हूँ बंद कर दूं
So I tell them कि हाँ मैं करने वाला हूँ. So I try to avoid मतलब conversation with those people as much as possible. So अभी जैसे एक और पॉइंट आता है हम सबकी जर्नी में, that we hit a plateau. Okay? एंड मतलब वो तो अगर तुम्हारी जर्नी लंबी है तो वो 2 3 4 बार भी आएगा. सो वो बहुत बार हुआ है. हाँ, सो वो उसको कैसे फिर आप टैकल करते हो प्लेट्यू को? देखो अभी मैंने पिछली बार अभी सिंस लास्ट 3 मंथ्स कई बार मेरे साथ हुआ था कि मैं बिल्कुल कुछ भी कहीं से मुझे लग नहीं रहा था कि कोई डिफरेंस आया है. सो एट दैट पॉइंट अभी मतलब आई चेंज्ड माय डाइट अ बिट एंड वर्कआउट भी थोड़ा सा मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी उसकी. तो या आई गेस उसके बाद मुझे अभी काफी अच्छा चेंज दिख रहा है. मतलब 3 मंथ्स पहले तो मतलब आई वाज लाइक कि कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैं सब कुछ सिमिलर चल रहा था मेरा. ब्रेकफास्ट सिमिलर, कैलोरीज सिमिलर, कुछ भी चेंज नहीं था उसमें. तो या आई थॉट ऑफ गोइंग ऑन डाइट ब्रेक आल्सो, जिसमें थोड़ा सा एक बार ब्रेक ले लो. ऐसा नहीं कि जंक खाना है उसमें, बट हाँ थोड़े कार्ब्स इंक्रीज कर दो, प्रोटीन इनटेक फॉर अ वीक. ट्राई दैट. इफ यू आर ऑन 70, जस्ट शफल इट अप है ना, थोड़ा स्पाइस इट अप, मतलब थोड़ा हाँ, शफल कर सकते हो. अब 1700 कैलोरीज है तो आप थोड़ा सा उसको 2000 कर दो फॉर अ वीक. देन बॉडी को चेंज मिलेगा. देन अगेन गो 1700. तो या ये चीज मैंने ट्राई किया एंड इट आल्सो वर्कड फॉर मी. And also, Nihal, okay, we are also human beings, okay? We also get stressed out. We also get anxieties. We also, there's this time come when हमारे भी like we can either go through heartbreaks या financial losses and everything. मतलब जब मेंटल हेल्थ बिल्कुल पीक पे नहीं होती, ठीक है, या बहुत लो होती है या पीक पे नहीं होती, उस टाइम पे बहुत दिल करता है कि यार फोन बंद कर दूं, 3 4 दिन कोई वीडियो ना बनाऊं, आराम से रिलैक्स करूं, है ना. पर फिर वापस वही चीजें आती हैं कि यार अगर नहीं बनाया तो वो प्रेशर बिल्ड होगा, बाद में ज्यादा काम करना पड़ेगा, ये तो वो एक कंटिन्यूअस एक आई थिंक ये बहुत बहुत साइकिल है, बहुत टॉक्सिक सा साइकिल है. बिकॉज अगर तुम काम करते हो तुम्हें तब भी बुरा फील होता है कि यार मैं अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल रहा, ठीक है, आई जस्ट नीड टू रिलैक्स अ बिट. और उस अगर तुम नहीं करते हो तब तुम्हें फील होता है कि यार मैं काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है. इस टाइम पे तो बिल्कुल करना चाहिए. जब टाइम डिफिकल्ट होगा तो अगर मैं कंसिस्टेंसी तोड़ दूंगा तो क्या होगा, है ना. कभी कभी उस चीज में, ये स्पेशली मेरे साथ हुआ, ठीक है, आई वॉज बर्नड आउट. आई वॉज मतलब आई हैव दिस पैक्ड, सो पैक्ड, मतलब पूरा स्केड्यूल दैट आई sometimes I don't even have time to eat meals or something. Okay, कुछ दिन हाँ होता है टाइम, कुछ दिन तो बिल्कुल भी नहीं होता. एंड मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे साथ 4 हफ्ते कंटिन्यूस ऐसा हुआ कि मेरे पास एक दिन भी टाइम नहीं था. जस्ट इमेजिन, इवन ऑन वीकेंड्स. सो आई वाज सो बर्नड आउट एंड आई वाज लाइक के मेरे से नहीं. आई वाज दिस क्लोज टू क्विट जशन टॉक्स फर्स्ट ऑफ ऑल. दिस क्लोज. आई वाज लाइक लेट मी डीएक्टिवेट दिस पेज फर्स्ट. मतलब मेरा एक पॉइंट वो आ गया था. ओके. एंड when we did this 30 videos 30 day challenge है ना, तो वो किया था. वो 30 वीडियोस के बाद मतलब वो मेरा माइंड इतना ज्यादा बर्न आउट हो गया था, आई कुडंट इवन थिंक. मेरे लिए नॉर्मल चीजें करनी भी मुश्किल हो रही थी. इवन इनफैक्ट मतलब टाइम माय लेजेस ऑफ शूज वाज आल्सो अ ह्यूज जॉब. एंड मतलब तैयार होना, उठना, एंड वाज लाइक यार ये क्या हो रहा है. मतलब दिस कंटेंट क्रिएशन इज टेकिंग अ टोल ऑन माय मेंटल हेल्थ. हैव यू फेस्ड दिस? ठीक है, चलो तो उतना एक्सटेंड पे नहीं, अगर थोड़ा सा भी फेस किया है, सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू फेस दिस? डू यू सिट बैक एंड रिलैक्स, और डू यू क्रिएट मोर कंटेंट की चलो कोई बात नहीं मुश्किल टाइम है तो क्या, बट कंसिस्टेंट. आई क्रिएट मोर कंटेंट एंड क्योंकि मैं मेडिटेशन मतलब आई एम वेरी मच इनटू मेडिटेशन आल्सो. मैं डेली मेडिटेशन तो मैं करती ही हूँ, ठीक है. एंड आजकल जो चीज़ मुझे स्ट्रेस कर रही है दैट आई एम क्रिएटिंग कंटेंट, ठीक है. और जिस कंटेंट को व्यूज मिलने चाहिए, मतलब ये पहली बात तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करना चाहिए, ठीक है. बट पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है. मैं कुछ कंटेंट में बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और मुझे लगता है दैट इट विल रीच, ठीक है. बट उस पे बिल्कुल रीच नहीं आ रही है, और जिस वीडियो में 10 मिनट लग रहे हैं उस पे आ रही है. तो मुझे इस चीज़ का एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इस पे मुझे गुस्सा आता है, जो कि आना नहीं चाहिए, ठीक है. बट फिर भी मतलब इट अफेक्ट्स मी, मैं ये कह सकती हूँ. क्योंकि कहीं बार, और अभी जब से मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया तब से यही चीज़ हो रही है. मतलब कि जो चीज़ मैं बनाना इसमें चाहती हूँ मैं कि इसमें व्यूज आए, लाइक्स आए, उसमें नहीं आते हैं, और जिसमें नहीं आने चाहिए उस पर आते हैं. ये मैं बताता हूँ हमारे साथ क्या हुआ. ओके, सो वी आर पीपल, मैं आई कैन टेक मेनी नेम्स. ओके, आई नो पीपल. डू यू नो डिजिटल प्रतीक? मी, डिजिटल प्रतीक,
many names more like Raj Shamani, sell it हाँ, like Raj Shamani, I know. sell it like I swastik. have met Raj Shamani. हाँ, तो सिद्धार्थ, all of us we started before reels and algorithm was thing. ओके, तो हमने उस टाइम पे स्टार्ट किया है जब रील्स नहीं होती थी, मतलब रील्स ऑब्वियसली नहीं थी. मैं आई एम आल्सो इनटू कंटेंट क्रिएशन फ्रॉम लास्ट 2-3 इयर्स. ओके, सो ऑब्वियस रील्स आई हैं लास्ट ईयर. रील्स नहीं होती थी, एल्गोरिदम जैसी भी कोई चीज नहीं होती थी. जिसने पोस्ट ऊपर डाली उसके आपको ऊपर दिखेगी सिंपल. ठीक है, इट्स नॉट लाइक इंस्टाग्राम चूज करेगा कि किसकी पोस्ट ऊपर जाएगी. वो भी बहुत लेट आया, हमने वो सारा देखा है. वी वर क्रिएटिंग कंटेंट व्हेन इंस्टाग्राम हैड दिस ओनली 1 by 1 का फीचर कि 1 by 1 की फोटो डलेगी बस. और उसमें क्या होता था कि अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा है ना, उसको ऑटोमेटिकली वैल्यू मिलेगी. ठीक है, उसको ऑटोमेटिकली वैल्यू मिलती थी. पर तब ये भी नहीं था कि सेव करो, शेयर करो, कुछ नहीं. इट वाज जस्ट प्लेन लाइक एंड कमेंट. और हमने उस जर्नी को देखा. एंड तब प्रमोशंस भी नहीं होते थे, इंस्टाग्राम प्रमोशंस जैसी कोई चीज नहीं थी. तब हम क्या करते थे, जैसे जो मीम पेजेस है ना, उनसे प्रमोशंस करवाते हैं. मीम पेजेस या अलग अलग पेजेस हैं, कुछ भी है, उनको पैसे देकर उनसे प्रमोशन करवाते थे. सो दैट इज हाउ वी यूज्ड टू ड्राइव ऑडियंस टू आवर पेज. तो उसके बाद जब आई रील्स, हमारा भी दिमाग फटने लगा. एंड आई रिमेंबर आई हैड कॉन्वर्सेशन विद मेनी पीपल लाइक डिजिटल प्रतीक आल्सो. एंड वी वर कंफ्यूज्ड कि यार अब जो हम वैल्यू देना चाहते हैं उस वैल्यूएबल कंटेंट को तो रीच ही नहीं मिल रही है. जिस रील को बनाने में 15 सेकंड लग रहे हैं वो सब लोग बढ़िया शेयर, कमेंट, लाइक, कमेंट सब कुछ हो रहा है. बट सून वी रियलाइज्ड दिस कि अभी इसमें वी फाइंड द सोल्यूशन इज, एंड सोल्यूशन मतलब बताया पीपल लाइक स्वास्तिक इज अमेजिंग. ओके, सेल इट लाइक स्वास्तिक करके उसका पेज है. तो उसने ये बताया कि यू हैव टू फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू एंड बिल्डिंग अप कम्युनिटी एज इन की तुम्हारी सोशल मीडिया पे जब कम्युनिटी बिल्ड हो गई, देयर आर particular people who will watch your post and comment on your post every post, and that is what you have to focus on. उस ऑडियंस पे फोकस करो, उस कम्युनिटी को बढ़ाओ ज्यादा से ज्यादा. और जब वो कम्युनिटी बढ़ जाएगी ना, तुम जो भी पोस्ट डालोगे वो तुम्हारी उन लोगों तक जाएगी. एंड दैट इज हाउ यू ग्रो. ओके, बिकॉज इफ यू सी बहुत लोगों का, इनफैक्ट मेरा भी पेज पे वी फील कि हमारा प्लेट्यू लग चुका है. But if you'll go inside the numbers, likes, comments, shares, they are reaching drastically. वो बढ़ रहे हैं because हम बहुत पुराने कंटेंट क्रिएटर हैं, हमारी ऑडियंस बहुत पुरानी है. उस वजह से जब रील्स आई हमारा भी उनके साथ टच एक बार टूट गया, बिकॉज वो सारी ऑडियंस अब रील्स में एंगेज कर रही है. मतलब एंड ऑफ द डे फोकस ऑन बिल्डिंग कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट द नंबर्स. नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक if you want to understand the numbers, then वो जो insights में you get the reach, number one, and content interaction, वो उसमें content interaction percentage होती है, वो बढ़नी चाहिए. I think if that is increasing your day by day, you are on perfect track. Okay? हाँ, मतलब that is increasing because मैं Q&A भी काफी ज्यादा करती हूँ. तो कई लोग बोलते हैं कि तो क्या रोज Q&A करने बैठ जाती है. मैंने कहा रोज तो नहीं, वीक में एक बार I do, and कई बार पता नहीं उसमें आलस मुझे आ जाता है तो मैं कई बार स्किप कर देती हूँ. बट आई ट्राई कि आई डू इट ऑन एवरी वीकेंड. तो या आई गेस दैट इज एक्चुअली द बेस्ट थिंग कि Q&A आप ऑडियंस से इंटरेक्शन कर रहे हो. तो आई गेस दैट इज गुड. और कमेंट्स में भी आई ट्राई टू रिप्लाई टू एवरी कमेंट. सो या दैट्स ऑल्सो तो अब ज्यादा मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम थिंग वी कैन डू. एग्जैक्टली, वो ही बेसिक एंगेजमेंट होती है जो हमें करनी भी चाहिए. ओके, सो वन मोर थिंग, what is one advice you would like to give to a person who is just starting, जो जिसने आपकी जर्नी देखी है, बहुत इंस्पायर्ड है, और from where he or she should start? Okay, तो अभी for now I will just tell him to start working on your diet. That और अब बेसिक चीजें करो. ये सब नहीं कह रही हूँ सैलेड जो एकदम स्टार्ट कर दो खाना. जस्ट रिमूव प्रोसेस्ड शुगर, जंक फूड्स, ऑल टाइप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सब रिमूव कर दो. मैं ये नहीं कहूंगी कि जस्ट स्टार्ट विद वेट ट्रेनिंग एंड ऑल. आप नॉर्मल वॉक करो, ठीक है. आप धीरे धीरे स्लोली सब कुछ स्टार्ट करना चाहिए ऑब्वियसली. तो या मतलब यही है मेन, जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर डाइट, देन थोड़ा सा वॉक करो. आई जस्ट टेल देम टू प्रोग्रेस स्लोली. ऐसा नहीं सब कुछ एकदम से स्टार्ट करना है. तो या दिस इज द स्मॉल चेंजेस आई कैन. मतलब पहले सबसे पहले अपनी विल पावर से स्टार्ट करो. मतलब जो तुम्हारी टेम्पटेशंस है पहले उनको निकालो, ठीक है. और फिर धीरे धीरे करके चीजें सामने आने लगेगी. एंड वुड यू सजेस्ट टू गेट अ कोच? या आई विल, बिकॉज क्योंकि मैंने काफी मिस्टेक्स करी है तो मैं उसको अवॉइड कर सकती थी. और जो मिस्टेक्स मैंने करी है दैट
अभी भी मुझे वो सही करने में बहुत टाइम लग टाइम रहा है, लगता है। बिकॉज मेन वाज द हेयर लॉस इशू व्हिच आई वाज फेसिंग। तो अभी जाकर मतलब अभी जाकर 90% ठीक हुआ है, 10% इट्स लेफ्ट टू अभी सही का होना बाकी है। तो या आई गेस स्टार्टिंग में रखना चाहिए एंड जस्ट मेक श्योर दैट ही इज एक्चुअली द मतलब ऐसा सर्टिफिकेशन में मैं नहीं जाऊंगी, बट एक्चुअली होना चाहिए जो काफी एक्सपीरियंस्ड हो, द वन व्हिच इज वेरी मैं एक्सपीरियंस्ड। इसमें पता है क्या बोलता हूँ लोगों को कि गेट अ कोच, इट विल सेव योर टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज एंड इवन एनर्जी। बट इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, जस्ट चेंज योर कोच। इसमें ना, इसमें बहुत ट्राई एंड एरर मेथड है। यू जस्ट हैव टू ट्राई कि तुम्हारी किसके साथ बॉन्डिंग बैठती है। अगर तुम्हें लगता है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि कोच को पैसे दे दिए फिर उसके साथ ही सारी जिंदगी अब लगे रहना है। नहीं पसंद तो बिल्कुल चेंज करो, चूज योर हेल्थ फर्स्ट। ओके, हाँ अगर एग्जैक्टली। आपको लगता है कि उससे वो रिजल्ट नहीं लेके आ पा रहा, अगर आपको लगता है कि वो वैल्यू नहीं दे पा रहा, अगर वो आपको लगता है कि आपका एक हेल्दी माइंडसेट नहीं बिल्ड कर पा रहा, वो सिर्फ आपको या तो एक्सरसाइज बता रहा है या वो एक पीडीएफ बना के डाइट की भेज देता है कि सुबह से लेके शाम तक ये खाओ, उसने समझाया भी नहीं कि क्यों खाना है, ठीक है। तो अगर आपको ये लगता है ये सारी चीजें, जस्ट गेट रेड ऑफ हिम, ठीक है। कोई उससे पैसे भी वापस मांगने की जरूरत नहीं है, बहस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गेट अ न्यू कोच। ओके एंड yesterday आई वाज टॉकिंग विद अ गर्ल। तो आजकल कोचेस भी ऐसे ऑफर्स रखते हैं कि लोग टेम्प्ट हो ही जाते हैं। जैसे 3 मंथ का ये लोग पैकेज रखते हैं कि दैट इज फॉर लेस कॉस्ट देन 1 मंथ, ठीक है। तो कई लोग इसमें पागल बन जाते हैं और वो 3 महीने वाला ही लेते हैं, ठीक है। तो शी टोल्ड मी दैट शी पेड हिम 10,000 फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। एंड देन मतलब ही इज नॉट कि एक्चुअली द कोच इज वन हु मोटिवेट्स यू। डाइट प्लान और वर्कआउट तो कोई भी करा कोई भी सकता कर है, ठीक देगा। है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोच इज वन जो आपको डेली आपसे पूछ रहा है क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कुछ सही चल रही है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कोच, राइट। डाइट प्लान तो कोई भी दे सकता है आपको बनाकर, दैट इज नॉट द सेट। तो शी वाज लाइक वीक में बस वो मुझसे एक बार ही पूछता है, ठीक है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो ये भी आजकल काफी ट्रेंड चल रहा है कि बस 3 मंथ्स का हम या 1 ईयर का अच्छा पैकेज मिल रहा है तो वो ले लो बस। मैं तो बोलता हूँ कि देखो, आई एम अ जिम ओनर ऑल्सो, कभी भी साल की मेंबरशिप मत लो। स्टार्टिंग में सिर्फ 1 महीने की 2 महीने की लो। तुम्हारी अगर हाँ कंसिस्टेंसी बनती है, इनफैक्ट जिम डाइट एवरीथिंग, स्टार्ट फॉर 1 मंथ ओनली। अगर तुम्हें लगता है कि यू आर कंसिस्टेंट हाँ एनफ, तब तुम जाओ साल की मेंबरशिप लो। अगर तुम्हें लगता है सर्विसेज अच्छी हैं, तुम टिक सकते हो, तुम कोच के साथ तुम्हारा बैलेंस बन रहा है, तो उसके बाद तुम साल की 3 महीने की फिर देखो कि हाँ हमारे पैसे कहाँ पे बच सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर मैं, क्योंकि ट्रस्ट मी, 80% ऑफ द पीपल पे फॉर एनुअल मेंबरशिप एंड दे डोंट इवन कम फॉर 3 मंथ्स। और ये होता आई हैव है। लिसन्ड 100 एग्जांपल्स ऑफ देम। हाँ, मतलब वो होता है जिम में, तो वो हम उनको, मैं खुद पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि 1 महीने की या 2 महीने की लो। फिर वो बोलेंगे 1 महीने की 2 महीने की बहुत ज्यादा महंगी है। मैंने कहा देख, तू साल नहीं आएगा फिर तो तुझे यही सस्ती पड़ेगी। तो उससे पहले ये ट्राई कर, तुझे अगर लगेगा तेरी एक्सटेंड कर देंगे। तो ये समझना लोगों के लिए भी जरूरी है। एंड यही है कि कोच के साथ यू कैन जस्ट गेट इन टच। अगर आपको लगता है कि बैलेंस नहीं बन रहा, जल्द से जल्द उसको चेंज करो। इसमें कोई या ज्यादा प्रेशर लेने एग्जैक्टली। की जरूरत नहीं है। हाँ एंड हाँ। हाँ, तो यही होता है कि माइंडसेट, अभी हम क्या करते हैं, हम डेली अपने क्लाइंट्स के साथ सुबह जूम कॉल करते हैं, हम डेली उनके माइंडसेट पे काम कर रहे हैं, हम डेली उनके साथ टच में आने पे काम कर रहे हैं। अब कभी कभी क्लाइंट्स ही जूम कॉल पे नहीं आते, ठीक है, हम सर्विस दे रहे हैं और वो सर्विस को अवेलेबल या यूज नहीं कर रहे। सो वो दोनों साइड से आपको इनपुट चाहिए होगा अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन। बिकॉज बहुत से लोग ना, मोटिवेशन तो होती है, स्टार्ट करना है करना है करना है, बट रीजन नहीं पता है कि क्यों करना है। बस किसी ने बोल दिया कि तू बहुत ओवरवेट हो गया, कम कर, तो थोड़ा सा इमोशनल हुए और स्टार्ट कर दिया। या भाई की एग्जैक्टली। शादी आ गई, या अपना बर्थडे आ गया कि बर्थडे है चलो कम करना है, तो वो सारी गलत रीजन हैं। इसी वजह से लोग भी बहुत बार ड्रॉप कर देते हैं। दैट इज शॉर्ट टर्म गोल और ज्यादा हाँ, दिन तक नहीं टिकेगा एक्चुअली। और उसके बाद तुम्हें मोटिवेट थोड़ी करेगा वो चीज, नहीं करेगी। वही तो, हाँ राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड मतलब कोच का मुझे मतलब एक एक उसका मुझे डिसएडवांटेज भी लगता है। जैसे मैंने अपने जिम में देख रही हूँ, ठीक है, लोगों को तो पर्सनल ट्रेनर के बिना वो हिलते भी नहीं है, ठीक है, हिलते भी नहीं है। अगर वो बोलेगा कि आप 20 तक कर लो, ठीक है, और वो चला जाएगा तो वो लोग 10 तक ही करेंगे, और ये मैंने नोटिस किया है, ठीक है। तो एक इस चीज का एक डिसएडवांटेज भी है कि आप पूरा उसी पे डिपेंडेंट हो। अगर वो जब छोड़ देगा उसके बाद क्या होगा। मतलब ये ऐसा सब पर नहीं है, बट मैंने एक दो लोगों को देखा है जो बिना ट्रेनर के कुछ नहीं करते हैं लिटरली हाँ, इन द वो आई जिम। थिंक वो लोगों को एक, वो दोनों साइड से प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी कोचेस और ट्रेनर्स और डाइटिशियंस जानबूझकर लोगों को सिखाते नहीं है कि इसको, इसने सीख लिया तो मेरे को क्यों पैसे देगा, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? वो थोड़ा सा वो
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। दूसरा, कभी कभी लोगों को ना सिर्फ आदत होती है कि मेरे साथ बस एक आदमी खड़ा होकर मुझे पर्सनली एक्सरसाइज करवाए, वो भी मैंने देखा है। हाँ ठीक है, तो हाँ वो कुछ लोग बहुत, मैं भी जानता हूँ, जब में आते हैं पीटी लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं, उनको ये नहीं है कि ये अच्छा एक्सरसाइज करवाएगा या ये करेगा। प्रॉब्लम ये आती है, उनको बस ये होता है कि मेरे पास एक इंसान खड़ा रहे, मेरे को डंबल भी वो उठा के दे, प्लेट भी वो डाले, सब कुछ वो करे। ठीक है, मैं जितना मिनिमम मेरा हाथ हिल सकता है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मैं उतनी ही करूँ। तो वो भी है। अब इसमें एक और चीज है, तीसरी चीज ये है, मैं इस लोगों को बोलता हूँ कि प्लीज अपने पर्सनल ट्रेनर से डाइट मत पूछो। दे नो अबाउट वर्कआउट्स, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट न्यूट्रिशन। एंड दिस इज हम्म। व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। देयर आर कोर्सेस जो अलग अलग होते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग के कोर्सेस में न्यूट्रिशन एंड डाइट के बारे में बहुत कम है, इट्स वेरी बेसिक। ज्यादा उनको वर्कआउट्स के बारे में बताया जाता है, कंपाउंड हाइपरट्रॉफी, आइसोलेशन वर्कआउट्स, उनको रेंज ऑफ मोशन वर्कआउट्स की पता हो कि कौन से वर्कआउट्स करने चाहिए, कौन से एरियाज को हिट करना है, किस मसल के लिए कौन सी एक्सरसाइज है, बट दे डोंट नो अबाउट न्यूट्रिशन। Yeah. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ओके, अगर अब उसकी प्रॉब्लम ये है कि आपने उसको 10,000 रुपए दिए हैं, अगर आप उसे पूछोगे, वो नहीं बोल सकता कि मेरे को नहीं पता। हाँ, ठीक है, obviously, क्योंकि obviously. आप बोलोगे कि पैसे वापस दे, तू मेरे से क्यों नहीं बताएगा। ठीक है, और यही प्रॉब्लम एक्चुअल में डॉक्टर्स के साथ भी है। यू नो, इन एमबीबीएस डिग्री देयर आर 19 सब्जेक्ट्स एंड इट डज नॉट हैव न्यूट्रिशन। इट इज ऑल मेडिसिन एंड सर्जरीज हम्म। और सिम्टम्स को फिगर आउट कर। मैं भी जानता हूं, आई हैव डॉक्टर्स एज माई क्लाइंट्स, मेनी डॉक्टर्स, Oh, मेरे oh. बहुत से डॉक्टर्स हैं क्लाइंट्स मेरे। एंड दे ऑल्सो टेल मी कि जशन हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा ही नहीं है। पर लोग, पता होता क्या है, एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि रिसेप्शन पे लोग आते हैं, 500 रुपए दे देते हैं, अब अंदर आके मेरे को बोलते हैं कि जैसे डॉक्टर वो पता है क्या करते थे, बोलते थे कि हमारे ना बहुत ज्यादा एसिडिटी बन रही है, ये वो। तो डॉक्टर पहला सवाल पूछता है कि तूने रात को क्या खाया था। बोलता है कि मैंने तो रात को कढ़ी खाई थी, साथ में ये सब्जी खाई थी। उसको पता है एसिडिटी बनी है, इसने रात को गलत खाया है। वो बोलेगा चल यार ये मेडिसिन ले ले, और वो मेडिसिन लेगा और वो बोलेगा कि डॉक्टर बड़ा सही है, इसकी मेडिसिन तो काम करती है। ठीक है, थिंग इज कि न्यूट्रिशन के बारे में डॉक्टर्स को, अभी मेरे ही सामने एक बार ऐसा हुआ, मैं गया था फिजियोथेरेपिस्ट के पास, माई रिस्ट मूव। ठीक है, तो मैं Okay. फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, उसके पास एक बच्चा आया जो आई थिंक 15 या 16 साल का था, उसका वेट 100 से ज्यादा था, और ही हैड ऑल्सो, उसको भी कुछ हेल्थ इशू था, आई थिंक उसका भी कोई बोन वगैरह मूव की थी, एंड डॉक्टर वाज लाइक कि तू वेट कम कर। ठीक है, और वो पूछ रहा है कि डॉक्टर साहब वेट कैसे कम करना है। उसने पता क्या किया, उसने कहा, उसने अपना असिस्टेंट बुलाया कि इसको ना वो, हाँ, उसको 1200 कैलोरी वाला डाइट प्लान ला के दे। उसने वो 1200 कैलोरी वाला ये लो डाइट प्लान, उसने पूछा ही नहीं कि तू क्या खाता है क्या करता है, उन्होंने बस बनवा लिए 2-3 डाइट प्लान वो न्यूट्रिशनिस्ट ने। ऑनलाइन जो मिलता है वो बस कई ये लोग उसी को 1200 फॉलो कैलोरी, करते ये हैं। 1500 कैलोरी, ये 2000 कैलोरी, और मैं उसका वेट देख रहा हूँ, मैं उसको लड़के को देख रहा हूँ, मैं यार ये 1200 पे तो टिक ही नहीं सकता, ये बेहोश हो जाएगा हफ्ते बाद। ठीक है, हाँ, बट ऑब्वियसली मैं उसके क्लिनिक में खड़ा 2000 था, तो मैं ही बोल नहीं नहीं, सकते। हाँ, मैं उसको कुछ बोल नहीं पाया। बट वही है कि डॉक्टर्स डोंट नो अबाउट न्यूट्रिशन एंड दे नो दिस, दे नो दिस। प्रॉब्लम ये आती है कि रिसेप्शन में 500 रुपए दे दिए, अब अंदर आके पेशेंट पूछ रहा है कि मैं कैसे वजन कम करूं, उसको बोलेंगे कि नहीं पता, तो कैसे चलेगा। बिल्कुल भी नहीं चलेगा, सही वही बात ना, है। फिर वो प्रॉब्लम आती है। तो इसमें ये बहुत बड़ा इशू है, पीपल आर नॉट हम्बल इनफ टू से दैट आई डोंट नो। मैं और अभी ये, मना कर देती हूँ, मुझे कहीं लोग पूछते हाँ, थायराइड में क्या करें, मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं पढ़ा मैं है, तो मैं मुझे साफ बोलता हूँ, देखो सर्टिफिकेट मेरे को भी नो। लोग आके बोलेंगे अजीब अजीब तरह की बीमारियां, मैं उनको बोलता हूँ देखो आई एम नॉट डॉक्टर। ओके, हाँ, मुझे कुछ लाइफस्टाइल डिजीजेस जो पता है, मुझे पता है उनको कैसे टैकल करना है, बट स्टिल आई एम नॉट डॉक्टर। ओके, आप पहले प्लीज अपने डॉक्टर को दिखाइए, चेक योर सिचुएशन, चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम। पर डॉक्टर को डाइट का मत पूछना, फिर डाइट का मेरे से आके पूछना। ठीक है, पहले डॉक्टर को प्रॉब्लम पूछो, उससे मेडिसिन पूछो, फिर हम डाइट पे थोड़ा सा फिक्स करेंगे। अगर डॉक्टर बोलेगा कि मेडिसिन कम करनी है, करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम बढ़ रही है तो मेडिसिन बढ़ाएंगे और किसी और डॉक्टर को देखेंगे, दैट्स इट। या राइट राइट तो राइट। ये समझना पड़े, मैं अपना रोल प्ले करता हूँ, पर मैं किसी के रोल में इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है, जिस चीज का मुझे हाँ नहीं पता मैं बोल देता हूँ कि मुझे नहीं पता। वो होना बहुत जरूरी है। अभी सोशल मीडिया पे लोग मानते ही नहीं है कि हम गलत है। अच्छा, आई ऑल्सो कैन से कि आई हैव बीन वर्किंग दिस ऑन 6 years, देयर मस्ट बी अ पॉइंट कि जहां पे मैंने कौन सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियसली गलत एडवाइस दी होगी। हाँ, इट इज इम्पॉसिबल कि मैं राइट बोलूं कि आई होता वाज है ये, ऑलवेज ऐसा ही होगा। ऑलवेज राइट, है ना।
हमने कभी ना right, कभी right. सब लोगों ने गलत एडवाइस दी होगी, बट वी हैव टू एक्सेप्ट दिस दैट वी कैन बी रॉन्ग। और नहीं Exactly. मानते हैं लोग, नहीं मानते हैं, मानते ही नहीं कि नहीं हम गलत नहीं है, तू है, ठीक है। मैं मतलब आई आल्सो एक्सेप्ट कि मैंने 1-2 एक्सरसाइजेस सही नहीं करी है एंड वर्कआउट्स आल्सो मैंने, दैट इज वेरी नॉर्मल, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कैप्शन में तक लिख दिया कि प्लीज डोंट फॉलो दिस इज नॉट राइट, मैंने उसका कैप्शन ही चेंज कर दिया, फिर भी पीपल लाइक आई डोंट नो व्हाई। Okay, one last thing, one last question is favorite snack, healthy snack. If you want to give one healthy snack to all of the audience, okay, this is my all-time favorite or go-time snack, जो मैं कभी भी कहीं पे भी खा सकती हूँ, and it's very easy to make. इट इज डेफिनेटली सैलेड। मतलब किस तरह का सैलेड? मतलब आई मिक्स इट विद पनीर एंड चिकपीस एंड स्प्राउट्स एंड थोड़ा सा पीनट्स, एंड मैं काफी बार रोज डेली खाती हूँ ऑलमोस्ट, एंड दैट इज, मैं बोर ही नहीं हुई 1 साल हो गया, एंड दैट इज एक्चुअली माय फेवरेट। या नहीं होता बोर, मतलब वेजिटेबल सैलेड। ओके, सो या इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू, बहुत ही ज्यादा आई थिंक अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई, डीप कॉन्वर्सेशन हुई, एंड इनसाइट्स वर रियली गुड। थैंक यू वेरी 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 मच फॉर डूइंग दिस। Never drop against all odds.